Hey everyone, welcome to UPSC Clarified. So, welcome back to the video. In this video, we will discuss about the essay and the importance of essay and how to prepare for it, all the strategy, etc. And we will continue this series and we'll also cover GS1, GS2, GS3, GS4, and also my optional anthro part, right? Before going ahead, I have to clear some things about my identity, like what is my name or roll number. So here I have let it be anonymous till the final result comes, and hope I see my name in the final list, and after that I would surely share with everybody. So I hope you guys understand the thing and trust the process. And here I'll also show you my Abhyas essay paper. So I think that would add some trust factor, but surely there would always be some people who won't trust, and it is understandable. But I just can make sure or request that it is trustworthy, and I'm not speaking anything which I did not do, or I am not speaking anything which is something which is unrealistic. So hence I expect the cooperation from everybody. So yeah, let's start the video. Now, before going into the video, before understanding, what is the demand of the essay or how to write it, how to prepare for it, let's understand the importance of the essay first. Essay is very, very important because, see, we have papers like GS1, 2, 3, 4, and optional, right? But some subjects as I have discussed in the earlier video also about my result video, ethics and essay play a very, very important role. If I remember it rightly, AIR 2023, Ananya ma'am, she has got incredibly good marks in essay and her ethics, and that also played a very important part in her journey to become, a topper. So essay has a whole, you have a whole 250 marks with you, right? Just have to master writing essay, master writing 2 essays, and that's it. You can score, 130. This is the average mark, like the best average mark. And there are some toppers also, like Vikram Gariwal sir, who have scored more than 160, I guess 161 if I'm not wrong. So the score varies very, 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 in a large extent. I have also seen people who get very low marks, like 70 to 80, sometimes 60 also, sometimes 50 also. So, and also in the same years, people also get 130 or 140, right? Sometimes 152. So it is, the variation is large. That shows the scope you have if you master this thing, and it obviously it plays a very, very important role. So yeah, let's start the main video, right? So yeah, this is what we look at today. First, let's understand the demand of the paper. Having understood the importance, the next important thing is understanding the demand of the paper. The demand of any paper of UPSC could be understood by its PYQs. First thing, these are the major important blueprint of how to study and how to prepare, what is the demand, what UPSC is expecting from us, right? So this is that. And if you have to firstly see what UPSC is expecting for us, let me show you one thing. So see, as you can see, this is what it is. Candidates may be required to write essays on multiple topics, right? That is more than one. In this case, we have to write 2 essays. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression, right? So if you are expressing exactly and effectively, you would be rewarded. So this is what UPSC expects from us if we are writing essay, right? So now let's see how UPSC is asking questions, right? So this is the 2021 paper. Essay will now here analyze 2021, 2022, 23 and 24 papers. Because here the major trend, got changed and started shifting towards philosophical etc. essays. Now, here we have, just read the topics: the process of self-discovery,
has now been technologically outsourced, and they have integrated philosophy with technology. So yeah, this is the first topic. First, let's read all the questions, and then we'll find a pattern. Your perception of me is a reflection of you. My reaction to you is an awareness of me. This is also a philosophical question. First, we are just broadly segregating it. Later, I'll also tell you how to integrate any philosophical question with the factual or the normal non-philosophical thing, rational, right? Next, philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is a chimera, right? The real is rational and the rational is real. So we have to choose one among these four. But if you see, most of the questions here are philosophical only. They have a philosophical bent, except the first question. So let's read the second section. Hand that rocks the cradle rules the world. This is a kind of factual or a non-philosophical thing. And what is research but a blind date with knowledge? This is also a scientific kind of thing. History repeats itself first as a tragedy, second as a farce. So this is slightly doable, not hard, because here it all speaks about history and you can have multiple examples. There are better practices to best practices. This is also kind of factual thing. So we have here two sections. One section has a more bent towards philosophy. The second section has a bent towards the factual or non-philosophical part. So this was happened in 2021, and now let's see the 2022 paper. So this is the 2022 paper. Here, forests are best case studies for economic excellence. Just remember the themes, forest, because they have asked it again in 2024. So yeah, PYQs also help us. So forests are the basic case studies for economic excellence. Next, poets or unacknowledged legislators of the world. This is a kind of philosophical कह सकते हैं या poetic या artistic kind of question है, क्योंकि if you have to write this, then you have to write so many examples of poets, etc., right? Nationally and internationally, because they're asking here world. And the next essay, history is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. Here यहाँ पे हिस्ट्री का थीम फिर से रिपीट हो गया है. यू कैन सी हियर अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर. सो यहाँ पे बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. ठीक है, यहाँ से आप देखोगे यूपीएससी वांट्स टू नो मेजरली ऑन द इंटरनेशनल जो इश्यूज चल रहे हैं आजकल. ठीक है, एंड जनरल इश्यूज जो चल रहा है सोसाइटल एक्सेट्रा and everything related to human etc. So they are now hovering into the domains of current especially, and they want a very good essay or your opinion on the things which are the pressing things currently in the world. So इस टाइप के क्वेश्चंस ना आगे ज्यादा हो जाएंगे. सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. वी यहाँ पे भी द सेम थिंग रिपीट्स. द करंट इंटरेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको, मतलब जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, राइट? वैसे वाले इन द टुडेज वर्ल्ड एंड इन द इंटरनेशनल डोमेन ऑल्सो. नाउ यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. यू कैन सी यहाँ पे सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं. अ स्माइल इज चोजन व्हीकल फॉर द एम्बिग्यूटीज. ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, राइट? दिस इज वेरी गुड, but you have to diverse it. That's also we'll discuss in the video later. But आपको इसमें diverse लिखने हैं. ठीक है, just because you have a choice it doesn't mean that any of them has to be right. So यहाँ पे सेम यही वाला रिपीट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है. ठीक है, दिस हैज हैपेंड इन 2022. नाउ लेट्स सी 2023. So now here, thinking is like a game. It does not begin unless there is an opponent. So yeah, we have seen these type of questions in the earlier papers also.
बट दिस ट्रेंड विल स्टार्ट. पहले हम लोग ने 2022 में देखा स्माइल के बारे में, अभी यहाँ पे थॉट्स के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, थिंकिंग मतलब थॉट्स. सो मतलब एक छोटी सी जनरल सी चीज का एक पूरा हिस्से पूछना, दिस इज व्हाट फिलोसफीज, राइट. सो ये भी थोड़ा फिलोसॉफिकल काइंड है. विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक. सो यहाँ पे सी, normally these type of statements, these type of lines are just statements or one liners, but imagine you have to write a whole essay on this. सो दीज इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं. जैसे कि लास्ट पेपर में हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे. एक टेम्पलेट होगा बेसिक, आप पहले हिस्ट्री से शुरू करते हो, सारे इवेंट्स डिस्कस करते हो, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है. पर यहाँ के जैसे मतलब ये ऐसे अगर आप देखोगे तो सो दे आर आस्किंग ऑन वेरी बेसिक एंड कॉमन थिंग्स, राइट. सो इनको भी लिखने का एक डायमेंशन होता है, वो विल डिस्कस लेटर, बट जस्ट हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स. नॉट ऑल हु वैंडर और लॉस्ट, ये भी बहुत फेमस हो गया था आफ्टर इट केम हियर. इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन, राइट. तो हाँ, ये भी थोड़ा डिफरेंट सा है. जस्ट सी द पेपर. गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स. Now here they want us to think about the other dimension also. They are testing us on how we can balance both the opposite views and opinions. So if you are choosing this, then you have to have a very good flow and have to have examples of both the sides and arguments and examples. ये जो arguments and examples हैं, they form the very basic thing of essay writing. Now mathematics is the music of reason. ये थोड़ा सा tricky है. Something if you have a good hold on mathematics and उसके theories जो है, तो you can surely answer this. But generally it is difficult. But you can manage. But दूसरे questions से comparatively उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, जो मैथ स्टूडेंट्स में ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी. सो ये भी बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी है. ठीक है, सही वही मतलब एकदम सोसाइटल एंड करंट थिंग्स पे बेस है. एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन वॉट वन हैज लर्न इन स्कूल. सो यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है. ठीक है, एजुकेशन की बेसिक थिंग है. एंड ठीक है, देखो नाउ एज वी हैव सीन द पेपर, नाउ एक पेपर रह गया, राइट. हाँ, ये 2024 का पेपर. ठीक है, ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है. इफ यू सी ए फॉरेस्ट का फिर से पूछा गया है. अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हो, ठीक है, तो कितना इजीली यू कैन आंसर दीज थिंग्स. आई एम नॉट टेलिंग सेम थिंग पे पूछा गया है, पर इफ यू राइट देम देन यू विल थिंक मेनी पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेनी फॉरेस्ट एंड many dimensions, many things related to it. So it would be very easy for you to articulate and design and refashion them and write here. If I have to say my experience, I have attempted this thing, forest, species, civilizations and desert, follow them wala. Let's read other questions also. The empires of the future will be the empires of the mind. Yeah, ये भी बहुत, this is also a very very good essay if you have much examples. ठीक है, there is no path to happiness, happiness is the path. वही यू कैन सी, हैप्पीनेस पे फिर से पूछा है, हमने ऑलरेडी इसको देखा था. इस वाले सेम सिमिलर थीम पे पहले भी पूछा गया है. द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. यहीं पे साइंस पे हमेशा पूछते हैं. देखो, इफ यू आर सीइंग इट क्लियरली, देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स वही रिपीट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मीडिया. ये तो बहुत ही ज्यादा करंट और इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर पूछ लिया है. ठीक है, फोमो के ऊपर, फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो ऐसे वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, मतलब इट इज इजी टू राइट, वील हैव सो मेनी एग्जांपल्स. सो आई अवॉइडेड इट, नॉट बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन एंड एवरीवन विल राइट, बट आई वाज नॉट हैविंग वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स इसके ऊपर, बिकॉज जो लोग लिखेंगे वो मास्टर करके मतलब अच्छे से लिखेंगे. इफ यू डोंट हैव सो मेनी एग्जांपल्स देन उन लोगों के ऐसे के कंपैरिजन में आपका ऐसे का स्टैंडर्ड थोड़ा कम लगेगा. सो आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस थिंग. So I have attempted this 6th wala question. All men can stand adversity, but to test the character, give him power. Why I have attempted this means,
the day before exam, essay exam on 19th of September, I wrote one essay just to have fluent practice. I wrote on the similar lines of power, and same thing. But and in that, well, after writing my essay, I was preparing for power, the topic of power. Came across this quote, and I wrote it. Like I have try to remember this quote, because कभी कभी ना themes पे आ जाता है तो लिखने का. So I have prepared this already. मतलब थोड़ा सा I had idea because I have written similar kind का. तो it became very easy for me. I thought कि section B में ये लिखना काफी easy होगा, क्योंकि एक दिन पहले लिखा था. So that was the reason I chose this thing, and I was knowing ये किसने दिया है, अब्राहम लिंकन ने दिया था. तो इसको आई हैव रिटन इन अ डिफरेंट वे. ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, ठीक है. All ideas having large consequences are always simple. The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. So यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है. We have seen 4 years के question papers, and इससे काफी कुछ will understand and learn, right? So now let's come back here. Right, we have seen the PYQs now. Now we have also seen the demand, क्या लिखना है, फ्लो एक्सेट्रा, ठीक है. मतलब एक फ्लो में रहना चाहिए. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड अ प्रॉपर सेम टेम्पलेट होगा, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एंड बॉडी. सेम चीजों पे लिखना होता है. पर यहाँ पे इससे में आजकल, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस पूछे जा रहे हैं, यू हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे में. मतलब ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स एंड बिल्डिंग chain of thoughts is important. Chain of thoughts, because we'll forget generally. And then how to start, ये भी basic से questions है, right? How to end, I don't know ये सब लोग बोलते हैं या नहीं, but when I was preparing for it, then I was not having any idea कैसे prepare करते हैं. तो I was even not knowing how to start, how to end also. So if people who have this type of silly sa doubt or silly sa question, then it's not a silly one actually. You feel it's silly, but it's actually a problem. Not everyone say this, because we get it. People think that, toppers do think that we'll get it on our own, but no, sometimes na छोटी छोटी चीजें भी, if you understand from others' experiences, it would be easy for us. We don't have to go through the same things again and again. ठीक है. How to start, if you ask me? Now we are talking about the templates, right? Template means structure. कैसा होना चाहिए कोई भी हिस्से का structure, how it should be. We are talking about this right now. Now ऐसे का होगा intro, right? ऐसे का होगा body, same conclusion. नाउ इंट्रो देखते हैं. इंट्रो में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. यू कैन राइट द वे यू वांट. फर्स्ट थिंग वुड बी हैविंग अ एनेक्डोट. कुछ लोग एनेक्डोट से शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने फॉरेस्ट वाला जो एसे है उसको मैंने एनेक्डोट से शुरू किया था. आई हैव गिवन सम नेम लाइक अंजलि और समथिंग, अ गर्ल ऑफ राजस्थान, because it was like forest and desert. So I have made a very small story, and I have started with it, and I have also ended with that story. So you have to, just how I told you, you have to have a chain of thoughts. First things first, anecdote. Second way of introducing your essay would be a quote. Some people use quote. In second वाले power वाले essay में I have used a quote of Lord Acton. उन्होंने बोला था power corrupts, but absolute power corrupts absolutely, something like this, on similar lines. So मैंने उससे स्टार्ट किया था. So पहला एनेक्डोट हो गया, दूसरा कोट हो गया, तीसरा क्या होगा, नथिंग, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द टर्म. फॉर एग्जाम्पल, वो लोग हैप्पीनेस के बारे में कुछ दे दिए, ठीक है, आप हैप्पीनेस से लिखते चले गए, ठीक है. या यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री, जैसे कि कुछ भी पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल साइंस के बारे में, ठीक है,
साइंटिफिक, साइंस एक्सेट्रा, तो आप इसको रेनाइजा से शुरू कर सकते हो, ठीक है। मतलब यू कैन टेल कि ऑरिजिन कहाँ से हुआ है एक्सेट्रा। आई होप ये समझ आ रहा है। ऑरिजिन से शुरू करते हो, हिस्ट्री वगैरह से या कुछ भी, इट शुड बी वेरी कैची, ठीक है। आप सिंपल में देखो, स्टार्टिंग में इफ यू राइट, आप वेरी स्मॉल चीजों से शुरू कर सकते हो, जैसे कि एनेक्डोट लिख लेना, ठीक है, एंड कोट वगैरह देख के लिखना, ठीक है। बट जब भी आप ना प्रैक्टिस करने लगते हो ना, देन यू विल ओनली, आपको खुद को रियलाइज होगा कैसे लिखते हैं, यू नो, इंट्रोडक्शंस डाइवर्स कैसे कर सकते हैं और हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है, ये सब आप समझ जाओगे। मैंने शो यू माई अभ्यास कॉपी ऑल्सो, आई टेल यू गाइज, ठीक है। दिस इज द बेसिक टेम्पलेट, वो तो इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी कैसा होगा? बॉडी होगा हर डायमेंशन, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम लोग को 2 एसेस लिखने हैं। ऑलवेज ट्राई टू दोनों एसेस को अलग अलग तरीके से लिखना, क्योंकि वो लोग बोर हो जाएंगे पढ़ने वाले, बिकॉज देयर वुड बी सम प्रोफेसर्स और समवन, दे वुड गेट बोर्ड इफ यू राइट 2 एसेस ऑन सिमिलर लाइंस, उन लोग को बहुत बोर हो जाएगा। सो यू कैन राइट इन अ डिफरेंट फैशन दोनों एसेस को, जैसे कि एज आई हैव टोल्ड यू, पहले का मैंने एक एनेक्डोट लिख दिया था, सेकेंड वाला मैंने कोट लिखा था, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड बॉडी, मतलब आप एसे का बॉडी भी जब देखोगे, उसमें पहले वाले एसे में आई हैव कम थ्रू हिस्ट्री, मतलब जैसे कि हाउ द फॉरेस्ट वर टुडे, यस, लाइक फ्रॉम पेरियोडिक, प्री हिस्ट्री के टाइम पे कैसे फॉरेस्ट थे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे वर, एंड हाउ एवरीथिंग प्रोग्रेस्ड, एंड नाउ हाउ वी आर, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, एंड लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली। फर्स्ट आई हैव रिटन इंट्रो में कि एक एनेक्डोट लिखा था, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, बॉडी कैसे बनाते हैं, यू if I have to take that forest for example and tell you, so I have written through history, like pre-history से कि कैसे फॉरेस्ट थे, how they were, उनका importance at that point of time and benefits, ठीक है। साथ ही साथ सिविलाइजेशन भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब ये हिस्ट्री जो है, ये फॉरेस्ट का हिस्ट्री हो गया और एक सिविलाइजेशन का हिस्ट्री हो गया। मतलब आप हिस्ट्री से लेके आ रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,000 BC से आप 2024 तक उनको लेके आ रहे हो। देखो यहाँ पे मे बी दिस वुड बी द लाइन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट, एंड maybe at this point would be civilization, and many different things would come up, right, and join here. तो ये सब चीजों को आपको साथ लेके ऐसे एक्सप्लेन करना है। यू कांट एक्सप्लेन पहले फॉरेस्ट का, उसके बाद में फिर बीच में कहीं सिविलाइजेशन, नहीं, सब चीजें इंटीग्रेट करके आप एक करोगे ना, तो चेन ऑफ थॉट्स बनेंगे, ठीक है। चेन ऑफ थॉट्स ही है व्हाट वी हैव रेड, राइट। एफिशिएंट एंड क्लैरिटी, इफेक्टिव एंड क्लैरिटी चाहिए यूपीएससी को इन योर एसे, एंड यू हैव टू बी क्लोज टू द टॉपिक। सो वो चीजें आती है चेन ऑफ थॉट्स बनने से। सो ये बॉडी को ऐसे बनाते हैं, कोई भी बॉडी ले लो यहाँ पे, मतलब कोई भी इससे का कोई भी टाइप ले लो। यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन यू यूजिंग हिस्ट्री, बट यहाँ पे सेकेंड वाले हिस्से में जो मैंने पावर वाला लिखा था, उसका बॉडी मैंने बनाया था डिफरेंटली, ठीक है। मैंने उसको इंट्रो में आई हैव रिटन अ कोट, देन आई हैव स्टार्टेड विथ अब्राहम लिंकन सर हिमसेल्फ, कि in which conditions what is power according to me etc. Even though I don't know much about what in what context he said, but आप बना सकते हो, right, मतलब you can guess or you can just think कि ये बोला होगा etc. So I wrote it like that, and I wrote everything in the whole essay according to Abraham Lincoln, his point of view, what he was meaning when he was saying this quote. Just because I was knowing that quote, I wrote like that. If you don't know that quote etc., it is very rare also sometimes knowing the quote and forming a chain of thoughts. So you can follow the general template. According to me, there is no set template. वही सेम होता है, पर वही डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। तो इसमें मैंने लिखा था अब्राहम लिंकन के बारे में, एंड पावर और कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर कैसे होता है, एंड हाउ पावर इफेक्ट्स कैरेक्टर। अगर पावर नहीं होता तो कैरेक्टर, अगर पावर पॉजिटिवली यूज करते हैं तो कैरेक्टर कैसा होगा, नेगेटिव कैरेक्टर मतलब क्या है, और सब चीजें, जैसे कि नेगेटिव कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर कौन से टाइप ऑफ पावर से आता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है, थिंग्स लाइक दिस। नाउ
नाउ आई हैव टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे का नो आप कैसे प्रेजेंट करते हो आर्ग्यूमेंट्स। इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन एनी आर्ग्यूमेंट, इट शुड बी लाइक, पहले आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड, यू आर मूविंग टू द बॉडी। फर्स्ट, आइडियाज होंगे आपके पास, चेन ऑफ आइडियाज होंगे, ठीक है। इसको आप शुरू कर रहे हो। पहले आप पहले एक आर्ग्यूमेंट दोगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट इज आर्ग्यूमेंट नंबर 1, यू आर गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट, राइट। उसके साथ एग्जाम्पल दीजिए। पहले मैं क्या करती थी, आई यूज टू राइट फर्स्ट एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ना पूरा इससे बस एग्जाम्पल्स मतलब मैं एग्जाम्पल्स पहले दे रही हूँ फिर उसको समझा रही हूँ। ये क्या होता है ना, बहुत फैक्चुअल लगने लगता है। हैप्पीनेस का एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल विल टेक वन इससे टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी, पर पहले लेट्स अंडरस्टैंड। पहले ये आर्ग्यूमेंट देंगे आप, इसका फिर से एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यही पावर और कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या है, इफ हैव टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो पहला आर्ग्यूमेंट बनता है मेरा, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये सब आप पहले ही ब्लूप्रिंट बना लोगे और उसको देख के यू विल स्ट्रक्चर ऐसे। डोंट गो ऑन राइटिंग ऐसे बिफोर मेकिंग अ ब्लूप्रिंट। सो ठीक है, माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वुड बी आई विल राइट लाइक पावर। पहला मे बी इफ आई एम प्रेजेंटिंग माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वो होगा कि हाउ पॉजिटिव पावर बिल्ड्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगी, पहले मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आया होगा। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारे पास महात्मा गांधी जी का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आई विल नॉट राइट दिस फर्स्ट आई विल राइट की पॉजिटिव कैरेक्टर, मे बी पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव कैरेक्टर is the result of the kind of power a person holds. हाइफन देके, it might be authoritative, charismatic एक्सेट्रा लिख देंगे। लिख के फॉर इन दिस सेंस ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हमेशा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आपको हर आर्ग्यूमेंट पे आई वुड तो सजेस्ट गिव एग्जाम्पल्स। सो हर एक बार फॉर एग्जाम्पल लिखना बहुत ज्यादा रूटीन हो जाएगा। इन दिस सेंस महात्मा गांधी जी कैन बी सेड टू हैव अ charismatic पावर, ठीक है, ऐसा। दिस इज फर्स्ट वन काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। फिर आप बिल्ड करोगे कि पावर, charismatic पावर होने के बाद भी कभी कभी नेगेटिव कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है। लाइक रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन एक्सेट्रा थे, उनके पास बहुत ज्यादा charismatic पावर था, पर आफ्टर दे हैव सक्सीडेड, दे हैव कम्युनिज्म उन लोगों ने किया था, ठीक है, सोशलिज्म करके। लेटर ऑन वी हैव सीन द हिस्ट्री कि बहुत ज्यादा करप्शन वगैरह एक्सेट्रा आ गया था। सो दे ओवर ऑल्सो हैविंग अ charismatic पावर, बट द कैरेक्टर which was built on the basis of that power was not good, right? So आप ऐसे लिख सकते हो, this was my motto to make you understand, right? Now टेम्पलेट्स हमने देख लिया, हाँ एक रह चुका है कंक्लूजन कुछ नहीं है, आपको ना लास्ट में बैलेंस कर देना है बस। जस्ट हैव टू बैलेंस व्हाट यू हैव टोल्ड और डिस्कस्ड। मध्य मार्ग का, जैसे कि मतलब एकदम यू कैन यूज वर्ड्स लाइक दिस मध्य मार्ग का, दिस फिलोसफी, ऐसा। और कोई भी प्लेटो या अरिस्टोटल का कुछ भी बोल के। समटाइम्स इट्स अबाउट बैलेंस, sometimes it's about how you're closing that thing, your opinion also, because इससे में आप कुछ भी लिख सकते हो। there is nothing right or wrong, there is nothing right or wrong in essay, क्योंकि you are presenting your kind of arguments etc ना, बस आपको उसको जस्टिफाई करके लिख देना है। इसमें कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज, मतलब आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। समटाइम्स वी राइट थिंक इन GS 1 2 3 4 राइट, कि ये सब्जेक्ट में मतलब यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं देना होता है एक्सेट्रा, पर यहाँ पे आप दे सकते हो। आपके पास बस उसको सपोर्ट करने के आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन आप ऐसे करोगे, डन हो गया। तो नेक्स्ट इज अबाउट
ठीक है, एप्टीट्यूड यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि सम पीपल हैव दिस नेचुरल एप्टीट्यूड ऑफ राइटिंग एसे, लाइक दे मे लाइक राइटिंग स्टोरीज, और उन्होंने कभी ऐसे ही लिखे होंगे, ठीक है, या पढ़ते होंगे बहुत ज्यादा। समटाइम सम पीपल लाइक राइटिंग दैट। सो कुछ लोगों का ये बहुत एप्टीट्यूड सा होता है कि वो लोग ना इजीली लिख सकते हैं, दे डोंट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट। उन लोगों के ना चेन ऑफ इवेंट्स सब इजीली बन जाते हैं। सो सम पीपल हैव एप्टीट्यूड, उन लोगों के लिए इट्स इजी, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्राई करके भी doesn't mean कि if you don't, doesn't mean I'm telling that if you don't have that aptitude आप नहीं कर सकते, but you have to practice if you don't have। हम लोग को अगर अच्छे मार्क्स, मतलब आप देख रहे हो टॉपर्स क्या कॉपीज और उनके एसेस, और आपको आपको मतलब आप वैसे नहीं लिख पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। यू हैव टू डेवलप दैट एप्टीट्यूड। नेचुरल होता है कुछ लोगों को, आप डेवलप कर लेना, कुछ नहीं है, बस डेवलप, मतलब यू हैव टू चेन ऑफ थॉट्स कैसे बनाना है, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा क्लियर कब होंगी, बहुत ज्यादा क्लियर कब होंगी, जब आप देखोगे ये टॉपर्स कॉपीज। आई वुड सजेस्ट सी विक्रम गरेवाल सर के, और कोई भी टॉपर देखो, गो जिनके ज्यादा मार्क्स आए हैं, like I maybe Ananya ma'am ka you can say, I don't remember how many marks she got exactly, and Medha Anand ma'am also, and just to see किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, एंड गो एंड सी देयर टॉपर्स कॉपीज, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। यू विल गेट टू नो अ लॉट। एसेस में टॉपर्स कॉपीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GS 1 2 3 4 से ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए नहीं होता है ना, वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन। व्हेन यू सी लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपीज ना, बहुत ज्यादा आपको डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। मेरे इससे में तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज रोल प्ले किया है टॉपर्स कॉपीज, बोथ इन GS एंड एसए। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपर्स कॉपीज को हर बार देखा करें, हमेशा आप इससे लिखने के पहले भी देखिए, ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप उसकी उनकी तरह ना लिखने लगोगे, ठीक है, सोचोगे और अपना बनाओगे, एक्सेट्रा। सो हाँ, नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। सोर्सेज देखो कोई नहीं है, सोर्सेज इसके लिए तो कोई नहीं, आपका GS ही होगा, ठीक है, आपने जो GS के लिए कराए। पर अलग से जो है ना, इसमें आपको अलग से अपना एक नोट्स बनाना है, कोट्स वाला, ठीक है, एंड छोटे छोटे एनेक्डोट्स हो गए, लाइक स्टोरीज यार, जैसे कि हेलेन केलर की स्टोरी हो गई, ठीक है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, जिसको आप इंस्पिरेशन में लिख सकते हो, ठीक है, वो बात करेंगे हम लोग जब थीम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे वाले एनेक्डोट्स आप, ठीक है, मैं दिखाई देती हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे थीम्स, थोड़े कॉमन थीम्स होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, हैप्पीनेस हमने देखा है, ठीक है, हमने देखा है फॉरेस्ट, हमने यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विजडम, पावर का, ये सब चीजों का ना, साइंस, साइंटिफिक एक्सेट्रा, इन सबका दीज आर द थीम्स, कॉमन थिंग्स जो रिपीट होने के, जिसके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको उस थीम्स के रिलेटेड एनेक्डोट्स ढूंढने हैं, जो रियल भी हो सकता है, या यू कैन मेक इट ऑल्सो। सो जैसे कि हेलेन केलर हो गए, ठीक है, एंड मेनी डिफरेंट पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो एनेक्डोट्स फ्रॉम भगवत गीता, महाभारत एंड अदर स्क्रिप्चर्स, क्योंकि ये बहुत इजी टू राइट होते हैं। आई हैव रिटन इन माई एथिक्स अ लॉट। महाभारत के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे, कौरवास एंड पांडवास। तो आपको पूरी स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इंपॉर्टेंट श्लोक कोई कृष्णा का, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन थीम्स, लेट्स गेट बैक हियर। हाँ, तो सोर्सेस कोई नहीं होगा, वही आपको एक नोट सा बनाना है, उनको दिखा देती हूँ। सो देखिए, ये मैंने बनाया था कोड्स एंड एग्जाम्पल्स वाला, ठीक है। मतलब इसमें मैंने अपने खुद से भी सर्च करके थोड़े लिखे हैं, एंड थोड़े टॉपर्स के जो कॉपीज मतलब नोट्स होते हैं इससे के, उनसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दीज आर सम, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि कभी कभी ना मैंने नोट्स में बनाया था वो सब चीजें, बट इफ आई हैव टू शो यू वन सैम्पल, जैसे कि हियर यू कैन सी ट्रुथ इज वन बेसिक थीम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, और कहीं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल से आपको दिखेंगे, तारामती,
ये सब चीज़ें। एंड यहाँ पे थीम नहीं लिखा है, पर सैक्रिफाइस, एथिक, सैक्रिफाइस सब में आप लिख सकते हो। ऋषि दधीची का एग्जाम्पल, सब चीज़ें ना एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स है छोटे छोटे। मंडेला, डैनियल एल्सबर्ग एंड एडवर्ड स्नोडेन। हैबिट्स के ऊपर अगर कुछ पूछ लिया, कंसाइंस के ऊपर, एम्पैथी के ऊपर, पावर के ऊपर, देखिए मैंने प्रिपेयर करा था। एंड लॉर्ड एक्टन का जो मैं लिख के आई हूँ वहाँ पे, यहाँ पे यू कैन सी अब्राहम लिंकन का, यही यही चीज़ रिपीट हुआ था। डाइवर्सिटी एंड स्पोर्ट्समैन डायलेमा एक्सेट्रा, लॉयल्टी, ग्रीड, डाइवर्सिटी, करेज, बहुत सारी चीज़ें ये मैंने टॉपर से ही ली है, बस मोस्टली कंपाइल किया है इन लोग को, सारे नोट्स को। विजन हो गया, मतलब कोई ग्रेट विजन का, बिल गेट्स का, जैसे राइट ब्रदर्स होते हैं, नेटफ्लिक्स का स्टोरी, स्पेसएक्स का स्टोरी, स्टीव जॉब्स का मोरालिटी के ऊपर कोई कोट वगैरह, ठीक है। ऐसे ही जापान एग्जाम्पल, तो ऐसे ही ये तो एथिक्स का हो गया, पर आप ऐसे में लिख सकते हो। ये इग्नोरेंस वाला जॉन रॉल्स का, डेटा प्राइवेसी, यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक थिंग्स, शायद ये भी मैंने कहीं से लिया है। प्रोबिटी, देखो हर एक चीज का, अल्ट्रुइज्म अगर आप लिख रहे हो, सैक्रिफाइस लिख रहे हो, तो रानी पद्मिनी, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने से बहुत एनरिच होता है एंड आपके जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसको एक बेस मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। सो या तो ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड हाँ, तो हो गई सोर्स की बात। आप अपना कंपाइल करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह आप कोई भी देख सकते हो। एंड मोस्टली एवेल्युएशन जो है ना, सब लोग सिमिलर ही करते हैं। मैंने विजन अभ्यास दिया था, ठीक है। और उसके अलावा ना मैंने आई जस्ट यूज टू राइट PYQs, और आई यूज टू शो माई एवेल्युएशन। आप कैसे कर सकते हो, यू कैन शो योर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स एक्सेट्रा। जस्ट टू शो माई सिस्टर, एंड बिकॉज शी इज नॉट हैविंग अ UPSC बैकग्राउंड, तो जस्ट टू आस्क हर की whether you're able to understand or not, मे बी एक चेन ऑफ थॉट्स बन रहा है, नहीं एक मेरा एक ओपिनियन या योर ओपिनियन रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे से ऐसा। एंड सर्स को भी, कोई भी कोचिंग के सर एक्सेट्रा, उनको यू कैन शो, ठीक है। इवैल्यूएशन हो जाएगा। बेसिकली आप खुद इवैल्यूएट भी कर सकते हैं टॉपर्स कॉपीज देख के, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन हमेशा अच्छा रहता है एंड देयर इज नथिंग टू, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर एसे। एंड टॉपर्स कॉपीज का तो मैंने बोल ही दिया। एंड वॉट आई डिड इज, मेरे पास एक्चुअली इट वॉज वेरी लेस टाइम, बिकॉज मुझे जल्दी से आंसर करना था एंड GS वगैरह भी करने थे दूसरे, तो इसी के ज़्यादा टाइम नहीं था। एंड प्री से पहले ज़्यादा भी आई डिड नॉट प्रिपेयर, आई डिड नॉट राइट मच लॉट ऑफ एसेज ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डिपेंड लॉट ऑन टॉपर्स कॉपीज। कोई लेक्चर वगैरह लिखना वगैरह से ज़्यादा ना, इफ यू सी द नोट्स टॉपर्स कॉपीज आपको ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। बहुत सारे देखिए, 10 देखिए आराम से, मतलब रोज आप 1 या 2 देखिए। एक टॉपर्स के 2 ऐसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उससे समझ आएगा बहुत ज़्यादा। एंड राइट एवेल्यूएशन करती थी, मतलब सेल्फ करती थी, और आई टू शो सो मेनी पीपल एंड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट, क्योंकि आपका अपना एक स्टाइल भी होता है इससे का। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को भी दिखाते हो और नॉट राइट लोगों को दिखाते हो, मतलब आपको जिन पे नहीं होता है ना ट्रस्ट वगैरह, या वो लोगों को नहीं पता होता है ज्यादातर ऐसे एक्सेट्रा के बारे में, तो डोंट शो देम, क्योंकि अलग हो जाता है, मतलब दे विल टेल यू बहुत अलग ही रिव्यू, एंड आप अपना स्टाइल सब छोड़ के ना अलग से प्रिपेयर करने लग जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो हैव अ राइट इवैल्यूएशन। एंड हाँ, तो एंड पे आई हैव प्रिपेयर्ड दिस कॉमन थीम्स के ऊपर नोट्स एक्सेट्रा, वही एंड इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स हो गए, वही कोड्स, आइडियाज, वैल्यूज, इस सब पे आई हैव प्रिपेयर्ड। राइट नाउ आई विल शो यू माय अभ्यास कॉपी। सो दिस वाज माय अभ्यास मेंस, यू कैन सी द डेट हियर, इसी साल का है। एंड इफ आई हैव टू टेल माई स्कोर, इसमें मुझे 128 मिले थे, ठीक है, फॉर 250। मे बी दिस इज नॉट मच, बट गिवन आई हैड नॉट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सो दिस वॉज अ डिसेंट स्कोर। अगर आप इससे और ज़्यादा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से 135 140 मिल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट स्टिल इट वॉज डिसेंट। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। एंड इसमें मैंने चूज किया था, टेक्नोलॉजी लाइक आर्ट इज अ सोरिंग एक्सरसाइज ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन। हाँ, नाउ यू कैन सी दिस थिंग। मैंने यहाँ पे
रेनाइजा से किया था, ठीक है। कोई भी चीज देखो, यहाँ पे technology like art is a soaring exercise of the human imagination. I have started like it was a time when the dark clouds of irrationality, conservatism, and redundance were hovering around. The world seemed like stagnant with lots of restrictions on thoughts and actions against the established norms. Yes, it was a time of Renaissance. It seemed like human imagination was curtailed. So वहां से human imagination शुरू हुआ है। पर एक और भी तरीका है इस, आई हैव चोजन दिस स्टाइल टू राइट ना। यू कैन ऑल्सो राइट, अभी मुझे याद आ रहा है, ह्यूमन इमेजिनेशन को आप लिख सकते हो पेंटिंग या स्कल्पचर्स इंडिया के प्री हिस्ट्री में। यू कैन स्टार्ट विद प्री हिस्ट्री पेंटिंग्स जो केव्स में करते थे, ठीक है, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। पर हमेशा याद रखिए, हमेशा कोई भी इतना बड़ा टॉपिक जो है इसको हमेशा साथ में लेके करिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अलग से, आर्ट को अलग से डील नहीं करिए, फिर ह्यूमन इमेजिनेशन को नहीं। आप इवन तो कुछ एक चीज को स्टार्ट कर रहे हो, पर इसको स्टार्ट कर रहे हो, पर बीच में आपको ना सारी चीजें ना इंटीग्रेट कर देनी है, नहीं तो इट वुड नॉट सीम स्ट्रक्चर्ड, इससे इफेक्टिव और क्लैरिटी या चेन ऑफ थॉट्स नहीं लगेगा, ठीक है। दिस वॉज माई एस्से एंड आई एंडेड इट। सो बीच में आप ऐसे ऐसे हेडिंग्स भी डाल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। मैंने डाले थे यहाँ पे भी और फाइनल में भी, पर उसको ऐसे ऐसे करके नहीं कीजिए, फिर वो एकदम आंसर की तरह दिखेगा। क्रिटिकल थिंग, इनोसेंट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, यू कैन, ठीक है। Hence, an integrated balance need to be emphasized. According to Buddha, imagination should be devoid of any material pursuits. This is how we could arrive at just technology and just art. ठीक है, कोई भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सारे ऐसे में ना वो चीजें इंटीग्रेट करी है, ठीक है। जस्ट मतलब मैं स्टार्टिंग से आई हूँ और बीच में जस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं ब्लेटेंटली कुछ भी फॉलो कर लो, और आर्ट भी जस्ट होना चाहिए लाइक दिस। सो एंडिंग भी मैंने वैसे किया है। So his second is say to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुद्धिस्ट फिलोसफी अपरिग्रह से स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही। और यहाँ पे मैंने शायद मध्य मार्ग लिखा है, ठीक है, टेकिंग अ मध्य मार्ग, ठीक है। एंड इट एंड्स लाइक दैट। By accepting the select changes and internalizing them by creating our own versions, could balance both innovation and progress, something like this. The societal morality sometimes would not let us accept changing realities, and similarly as recently pointed, थोड़ा सा आप डाल सकते हो, मतलब हाँ एक और चीज रह गई है, राइट। इमेजिन फिलोसफी प्लस नॉट फिलोसफी को इंटीग्रेट करके लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेट करके इन द सेंस यू हैव टू राइट लाइक, हाँ, यू हैव टू राइट लाइक कोई भी, इवन इफ कोई चीज बहुत फिलोसॉफिकली पूछी जा रही है, उसको आपको हमारे जीएस के सब्जेक्ट के साथ भी लिंक करना है, और उसके साथ भी आप लिख सकते हो, उससे मिक्स्ड बनेगा। क्योंकि आई नॉट मेनी ऑफ द पीपल कैन राइट द होल ऐसे फिलोसॉफिकली, अगर आप लिख सकते हो तो इट्स सुपर गुड, बट यू कैन ऑल्सो मिक्स इट एंड राइट। सो आई थिंक I have tried to explain everything which I think about the essay paper. Still, if you have any doubts, please comment down below and the series will go on. Actually, I was having my DAF related work done for so many days because tomorrow is the last day to submit the DAF, and I was not having time to make a video because I wanted to make a very detailed one, right? So I think I've tried to explain everything. And if you have any other concerns or any other questions or doubts or any other requests, you can please comment down below and I read all the comments. Thanks a lot. Have a good day.